Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। तो जो आपके डिजास्टर्स होते हैं, राइट, उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए पहले से ही हम अवेयर रह सकें, राइट, उसके लिए पहले से ही हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें, सेफ्टी ला सकें, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर कर सकें, राइट, नई नई इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग कर सकें कि कैसे अगर डिजास्टर आता है तो उसके हम कैसे बच सकें एंड कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो किसने साइन किया MOU? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन किया गया था। अगर मैं NIDM की बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पर? राजेंद्र रत्न, एंड 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NIDM एंड TERI, इनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं मैं, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली किनको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था SBI का? तो वो है विनय टॉन्से। देन इंटर्म CEO ऑफ OpenAI की कौन बनी थी? मीरा मुराती, लेकिन अब वापस सैम ऑल्टमैन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। देन इसी के साथ साथ ज़रा बताओ अभी रिसेंटली किनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक्टर रायन रेनॉल्ड्स, राइट, जो आपका कौन प्ले करते हैं यहाँ पे, राइट, रियान रेनॉल्ड्स। इन्होंने प्ले किया था आपका डेडपूल, करेक्ट, और इन्हीं को भी सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से। देन इसी के साथ साथ किनको महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया? सुरेश वाडकर को, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ किनको JCB प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया? JCB प्राइज ये लिटरेचर के लिए होता है, एंड किसको सम्मानित किया गया इस JCB प्राइज से? पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, राइट। तो हम यहाँ पे कमिंग बैक आते हैं इस न्यूज़ पर कि NIDM एंड TERI के बीच में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका एम रहेगा टू प्रमोट इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, encourage a culture of safety, advance disaster management strategies, promote sustainable practices, and contribute to the national agenda of disaster risk reduction. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज़ कह रहा है कि गवर्नमेंट ने भी मैंडेट कर दिया ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस विद CNG
एंड कंप्रेस्ड बायोगैस विद पीएनजी। जो ये कंप्रेस्ड बायोगैस और सीएनजी है ये आपकी यूज़ हो जाएगी ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लस पीएनजी जो ये होगी ये आपके घर में आपका डोमेस्टिक गैस के लिए उसके सप्लाई में इसको यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसका यूसेज बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बढ़ेगी इंडिया में। करेक्ट। इससे क्या होगा, जो नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है वो अचीव होने की बात की जाएगी, ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी। राइट, तो इसको मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू साइन किया NRW.ग्लोबल बिजनेस के साथ टू इस्टेब्लिश अ लॉन्च पैड इन जर्मनी। एक लॉन्च पैड प्रोग्राम लॉन्च किया गया जर्मनी में, जहां पे इंडिया के जो टेक स्टार्टअप्स हैं ना उनको बहुत, जो स्मॉल टेक स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल टेक बिजनेसेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर वो जर्मनी यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर इनको 180 दिन का फ्री ऑफिस स्पेस भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, रेंट फ्री ऑफिस स्पेस रहेगा। राइट, स्मॉल इंडियन टेक स्टार्टअप्स को जो कि जर्मनी में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो इसी के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी NRW.ग्लोबल बिजनेस के साथ एक एमओयू साइन किया, वो रहेगा नास्कॉम। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, दहन प्राइज ये अभी पंजाबी लिटरेचर में दिया गया, किनको दिया गया, दीप्ति बबूता। ये पहली वीमेन बनी जिनको दाहन प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर पंजाबी लिटरेचर। इसी के साथ साथ बताओ, इनलैंड फिशरीज बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज के लिए किसको सम्मानित किया गया, बेस्ट स्टेट अवार्ड कौन सी रहेगी, वो है उत्तर प्रदेश। करेक्ट। फिर मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, मिस यूनिवर्स 2023 वो कौन है, शैनेस प्लासियोस। राइट, ये आपकी मिस यूनिवर्स बनी है 2023। फिर इसी के साथ साथ मित्रा शक्ति ये एक्सरसाइज हुई। मित्रा शक्ति बताओ किन दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज हुई, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई, और इस बार कहाँ पे थी लोकेशन, पुणे में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला। नेक्स्ट, व्हाट बिकेम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, मार्क करके चलेंगे। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा बना है, वो है 12th सेंचुरी का एक टेम्पल। 12th सेंचुरी का ये टेम्पल रहेगा, 30 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को। ये है अंगोर वॉट। कहां पर है अंगोर वॉट, कंबोडिया में। राइट, कंबोडिया में रहेगा आपका अंगोर वॉट, और ये 8th वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड। ये एक एंशियंट टेम्पल है, 12th सेंचुरी का एंशियंट टेम्पल है, जिसको बनाया गया था किन के द्वारा, किंग सूर्यवर्मन द सेकेंड ने इनको बनाया गया था। 30 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को, एंड 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, हुन मैनेट। फ्नोम पेन यहाँ की कैपिटल रहेगी, एंड कंबोडियन रियल यहाँ की करेंसी रहेगी। ठीक है, तो अंगोर वॉट यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका 8th वंडर बना है ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट, इसने सरपास किया इटली की पोम्पेई को टू बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाए, जरा बताओ, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई। अगर मैं बात करूं फिर ICC वर्ल्ड कप की 2023 का, किसके बीच में फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है। राइट, कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में भी कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का। राइट, फिर इसी में अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेंगे, वो है विराट कोहली। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में 50 सिक्सेस मारने वाले वो पहले बैट्समैन कौन बन गए, वो है रोहित शर्मा। ठीक, फिर किन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन एन ODI, वो है विराट कोहली। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगोर वॉट। ये एक एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स रहेगा, कंबोडिया में है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन द सेकेंड के द्वारा। 30 साल लगे थे इसको बनाने में। एंड अंगोर वॉट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1992। मूविंग ऑन,
इंडिया ने अभी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डीपन कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद विच नेशन। तो किस नेशन के साथ मिलकर इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। तो इंडिया ने किसके साथ किया ये कॉपरेशन? यूरोपियन यूनियन के साथ। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी वर्कशॉप्स होंगी, पार्टनरशिप होगी, नॉलेज शेयर होंगी, जिससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों के बीच में हम जानते हैं जो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, चाहे आपका वो फ़ोन हो, चाहे ईयरबड्स हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, इवन गाड़ियाँ हो, ड्रोन्स हो, हर जगह आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज़ किया जाता है। एंड इसका आने वाले टाइम में हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसी इकोसिस्टम को, इसी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और यूरोपियन नेशन के इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन हुआ। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स रहेंगे और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई ने अभी कितने अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया इन द अलर्ट लिस्ट। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? जब फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है जब आप फॉरेन करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल $1 अभी 83 चल रहा है और मैंने बाय कर लिए $100, करेक्ट। कल $1 84 का हो गया, तो फिर मैंने ये $100 को बेच दिया। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1 का हुआ पर डॉलर। तो मेरे को $100 थे तो मेरे को ₹100 का यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह की भी ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं, राइट। और ये प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आरबीआई के द्वारा ऐड की गई हैं ऐसी 19 फॉरेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इन देयर अलर्ट लिस्ट, जो कि वो बताती हैं कि काफ़ी रिस्की है। इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट कैन बी रिस्की, ये आपका पैसा डूब भी सकता है और ये लेके भाग भी सकते हैं, राइट। तो इससे जो अलर्ट लिस्ट में अब जो टोटल एंटिटीज़ हैं वो कितनी हो गई हैं? 75 टोटल एंटिटीज़ हो गई हैं इन दिस अलर्ट लिस्ट ऑफ आरबीआई। ठीक, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर 1935 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इसी के साथ साथ बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब ऑब्जर्व किया हैं? 16 नवंबर। नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 नवंबर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर। देन वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 नवंबर। इंटरनेशनल मेंस डे, ये भी आपका 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ये आपका 20 नवंबर। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, ये भी आपका 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया $170 मिलियन का लोन टू मॉडर्नाइज कोचीज वाटर सप्लाई सर्विसेज। कोची की वाटर सप्लाई सर्विसेज को बेटर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे $170 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया। इस $170 मिलियन को किस लिए यूज़ किया जाएगा? ताकि अर्बन लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके, एंश्योर क्लीन वाटर एक्सेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बनाने के लिए उस एरिया को, राइट। इसी में अगर हम देखें तो 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा एंड एक नया बनाया जाएगा। 700 किलोमीटर ऑफ पाइप्स को रिप्लेस किया जाएगा विद रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर रिड्यूस्ड वाटर लॉसेस। देन 1,46,000 वाटर मीटर्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि बेटर परफॉर्मेंस उससे आ सके। देन केरला वाटर अथॉरिटी स्ट्रेंथन करेगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाएगी ताकि उसका यूसेज बढ़ सके एंड लोग उससे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें, करेक्ट, ज़्यादा अच्छे से डाटा मिल सके डैशबोर्ड की तरह, करेक्ट, ज़्यादा बेटर एनालिसिस हो सके, राइट। तो यहाँ पे इस मनी को यूज़ किया जाएगा $170 मिलियन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका जो कोड रहेगा ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो क्या है? DXN इस कोड से सिंबलाइज किया जाएगा ये, राइट। फिर याद रखेंगे ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसी को एक और नाम से जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट, राइट। ये कहाँ पे बन रहा है? गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट में इन यूपी बन रहा है एंड ये दिल्ली एनसीआर रीजन का, याद रखेंगे दिल्ली एनसीआर रीजन का ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पहला तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी कार्गो के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये है इंडिगो, राइट। तो इंडिगो याद रखेंगे, इंडिगो एयरलाइन ये वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम दिस जेवर एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बाय द एंड ऑफ 2024 ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक। और याद रखेंगे जैसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसका एम रहेगा टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट।
अगर इंडिगो एयरलाइंस की हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? पीटर एल्बर्स। हेडक्वार्टर रहेगा इसका गुरुग्राम हरियाणा में एंड 2006 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द आयरिश ऑथर हु वन बुकर प्राइज 2023। तो कौन है वो आयरिश ऑथर जिनको अभी बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? वो है पॉल लिंच, राइट। पॉल लिंच की एक नॉवल है जो जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, राइट। प्रॉफिट सॉन्ग ये आपका नॉवल का नाम रहेगा जिनके लिए पॉल लिंच को अभी बुकर प्राइज से यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये जो प्रॉफिट सॉन्ग है इसको पब्लिश किया गया था वन वर्ल्ड के द्वारा, राइट। एंड इनको अवार्ड दिया गया किनके द्वारा? 2022 की जो बुकर विनर थी वो थी शहान करुणा टिलिका। इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग एन सेरेमनी जो कि लंदन यूके में हुई। इनको 50,000 पाउंड स्टर्लिंग के सम्मानित किया गया और आयरिश नाम की ट्रॉफी से इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे 2023 के विनर कौन रहेंगे बुकर प्राइज के? वो है पॉल लिंच फॉर हिज नॉवल जो कि है प्रॉफिट सॉन्ग, और ये आयरिश ऑथर रहेंगे। ठीक, चलिए इसके अलावा देख सकते हैं जो बुकर प्राइज होता है ये दिया जाता है टू द फिक्शन राइटर्स बाय एनी नेशनैलिटी रिटन इन इंग्लिश एंड इसको पब्लिश होना चाहिए यूके या फिर आयरलैंड में। पहली बार 1969 में अवार्ड दिया गया था एंड जो विनर हैं 50,000 पाउंड स्टर्लिंग के से इनको सम्मानित किया जाता है एंड 2500 पाउंड स्टर्लिंग ईच टू द 6 शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर। अभी रिसेंटली बर्कशायर हाथवे ये आपकी एक कंपनी है लेड बाय वॉरेन बफे, करेक्ट। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं ये एंड वॉरेन बफे की कंपनी के द्वारा अभी पेटीएम में इन्होंने अपना 2.4% स्टेक को सेल कर दिया फॉर 1371 करोड़ रुपीज़ एंड यहाँ पर इन्होंने 31% का लॉस बुक किया है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इसको बाय करा था ना तो इन्होंने एक फिक्स प्राइस पे बाय करा था जो था आपका 1279.7 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने इस पर बाय किया था एंड इन्होंने इसको सेल किया है 877 रुपीज़ पर पीस पे। तो यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट 31% का यहाँ पे लॉस देखने को मिला और लॉस की वैल्यू रहेगी 620 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनको लॉस देखने को मिला जब इन्होंने अपने शेयर्स को सेल किया है पेटीएम में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कपिल देव, इनके द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई जो कि है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी बाय सत्य सरन, राइट। आई रिपीट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कपिल देव, इनके द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई जिसका टाइटल रहेगा थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। ये बुक ऑथर की गई सत्य सरन के द्वारा, राइट, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं एट द पैलेस हॉल्स इन मुंबई महाराष्ट्र। इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया था एंड इस बुक में अबाउट बताया गया है शंभू कुमार कासिलवाल, राइट। काफ़ी फेमस ये को फाउंडर हैं ऑफ एस कुमार ग्रुप जो कि फैब्रिक्स बनाता है इंडिया में। इनकी जर्नी के ऊपर इस बुक को लिखा गया है, राइट। एंड कपिल देव के द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं। 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। 26 नवंबर को ये कहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था एंड इसको लागू करा गया कब? 26 जनवरी को, राइट। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो अगर हम बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी को। बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर को, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया था हमने? 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड 2015 ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड जो अगर मिल्क की बात करें तो फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है? वो है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से ही सिंबलाइज रहता है। तो वर्गीस क्यूरिन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे और 26 नवंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया गया और 10th नेशनल मिल्क डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया और इनका 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी वर्गीन क्यूरिन की 2023 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 75th एनसीसी रेजिंग डे। 26 नवंबर को ये डे हमने ऑब्जर्व किया एंड एनसीसी रेजिंग डे को जनरली सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर, राइट। एंड एनसीसी का जो कमिटमेंट है करेक्ट शेपिंग द यूथ एंड कोर वैल्यूज को इम्पार्ट करने के लिए, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड 4th संडे को ऑफ नवंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। 75th रेजिंग डे था और इसको एनसीसी डे के नाम से भी जाना जाता है।
Next, remember Dharmendra Pradhan, who is our education minister. He has recently launched a Odisha Research Center in Bhubaneswar, Odisha, and this research center will be doing research on the culture and history of Odisha. Right? So this is your Odisha Research Center. Right? It is in Bhubaneswar, Odisha, and this will be working and doing research on various smart cities also, that culture there, their agriculture there, the business there, how are the development trends going on in Odisha, what are the new technology that can be used in healthcare, and various future technologies that can be used to implement various initiatives in Odisha. So the center will carry out research in various fields such as art, culture, archaeology, tradition, literature, sociology, right, political process, political culture, agriculture, commerce, etc. Right? So this is your Odisha Research Center launched in Bhubaneswar, Odisha by Dharmendra Pradhan. If we talk about Odisha, who is the Chief Minister? Naveen Patnaik. Governor will be Raghubar Das. He has recently been appointed. Then Bhitarkanika and Simlipal National Park are the national parks located here. So friends, these were your important current affairs. Now let's go for a quick one-liner revision. NIDM and TERI, they signed a strategic partnership in disaster risk reduction. Government has mandated blending of compressed biogas in CNG and PNG segments. Then NASCOM signed an MOU with NRW Global Business to establish Launchpad in Germany. इससे क्या होगा, जो इंडिया के स्मॉल टेक स्टार्टअप्स हैं उनको बिजनेस करने का मौका मिलेगा इन जर्मनी. देन एंगोर वॉट, ये वो 8th वंडर बन गया है वर्ल्ड का. इंडिया ने एंड EU ने एक MOU साइन किया फॉर स्ट्रेंथनिंग डीपर कॉर्पोरेशन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए. देन RBI ने 19 अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट लिस्ट में ऐड किया और अब टोटल 75 हो गई हैं इस लिस्ट में. देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रांट किया $117 million लोन टू मॉडर्नाइज कोचीज वाटर सप्लाई सर्विसेज. इंडिगो, द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. DXN इसका कोड रहेगा इस एयरपोर्ट का. देन आयरिश ऑथर पॉल लेंच, इन्होंने बुकर प्राइज जीत लिया 2023 का फॉर द नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग. बर्कशायर हाथवे, इन्होंने सेल कर दिया देयर एंटायर 2.46% स्टेक इन पेटीएम फॉर 1371 करोड़ रुपीस. कपिल देव ने रिलीज की एक बुक जो कि है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी बाय सत्य सरन. एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को. नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को. एंड 75th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को. देन धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया ओडिशा रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर में फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड अदर फील्ड्स में भी यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन्स पर, जो कि आपकी रिवीजन में, आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा. सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विच एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल समिट, विच एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट वॉज हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. जरा बताओ. तो याद रखेंगे भी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था. 7वां एडिशन था इस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का. 21 एंड 22 नवंबर को ये ऑब्जर्व करा गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में. करेक्ट. और इसका एम क्या था यहाँ पर, ताकि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको एक साथ लाया जाए एंड आगे हम अपने कैसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, बिजनेस को आगे बढ़ा सके इन अ फ्रेंडली स्टेट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. ठीक है. फिर यहीं पे हम देखेंगे 188 MOUs LOIs साइन किए गए. करेक्ट. एंड ड्यूरिंग दिस 7th एडिशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया कि 3.76 लाख करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर ऑफ इंटेंट्स एंड MOU. इसी के अलावा हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लेज किया कि 20,000 करोड़ की हम इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल में. ITC इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड लॉन्च द ITC मार्स एप्लीकेशन. फिर यहीं पे MOU साइन किया गया बिटवीन NSE एंड वेस्ट बंगाल ताकि फंड रेजिंग कर सके फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. राइट. यहीं पे फिर अमेजॉन एंड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जहाँ दे केम टुगेदर एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ठीक. फिर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगी, ममता बनर्जी. कैपिटल क्या है, कोलकाता. गवर्नर कौन रहेंगे, CV आनंदा बोस. अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जलपड़ा नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे रहेंगे. राइट.
फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनी, तो कोलकाता में बनी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। किस रिवर के नीचे बनी, ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। ठीक है, किस रिवर के नीचे, किस रिवर के बेड में हमें पहली अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिलती है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर इसी के अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे बताओ अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिन्होंने स्काई डाइव की फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली वो पहली वीमेन कौन बन गई है, वो है शीतल महाजन। वो कौन है, शीतल महाजन। देन किस कंट्री ने होस्ट किया सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, किसके द्वारा किया गया, हमारी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक, साइट्स 2.0 ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में, किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन सनफ्लावर इनिशिएटिव, सनफ्लावर इनिशिएटिव किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सनफ्लावर इनिशिएटिव को। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये हो अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, सूर्य किरण। तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें भी याद रखेंगे इनकी आर्मीज के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, फिर ये 24 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी, और इस एक्सरसाइज का भी कौन सा एडिशन था, 17th एडिशन हमें देखने को मिला। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज, तो ये इस बार उत्तराखंड में हमें देखने को मिली, इंडिया में। ठीक है, ये तो थी 17वीं एक्सरसाइज। अगर मैं 16वीं की बात करूँ तो लोकेशन क्या रहेगी, तो ये नेपाल में हुई थी लास्ट ईयर 2023 में और 2022 में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की तरफ से जो बटालियन थी वो है कुमोन रेजिमेंट, 354 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एंड नेपाल आर्मी की तरफ से था 334 पर्सनल्स जो कि तारा दल बटालियन से है। करेक्ट, और याद रखेंगे हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है 2011 से, मतलब पहली बार फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन आपका कब था, 2011 में। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री, विच कंट्री बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैनशिप रहेगी, ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ऑन शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, इसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास रहेगी, तो हमारी इंडिया के पास रहेगी 2024 के लिए, कि शुगर सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड जो ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो अब इंडिया के द्वारा करा जाएगा। राइट, इंडिया में देखें तो यूपी बहुत ज़्यादा फेमस है इन दिस सेक्टर, सबसे ज़्यादा हमें वहीं पे देखने को मिलता है। करेक्ट, एंड यहीं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यूपी में जो है, इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी अलग कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जैसे इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट एंड फिजी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका शुगर प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर कंज्यूमर की बात करें तो 15% शेयर है हमारे पास वर्ल्ड का, और प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास 20% रहेगा प्रोडक्शन का। फिर इसी के साथ साथ एक और आ जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। राइट, और अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इन एथेनॉल प्रोडक्शन, इन एथेनॉल प्रोडक्शन। फिर यहीं पे टॉप पर कौन है, यूएसए, फॉलोड बाय ब्राजील ऑन सेकेंड पोजिशन, एंड थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट केन प्राइस, एंड ये जो अपने फार्मर्स को भी ना एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल अपना शेयर देते हैं हम इंडिया में। ठीक है, जो फार्म करते हैं शुगर प्रोडक्ट्स को, जो शुगर केन को। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने अभी अचीव किया है 12% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल इन 22-23। यहीं पे हम इसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं, 15% करना चाहते हैं फॉर द ईयर 23-24, मतलब नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में यही हम 15% तक ले जाने की बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। फिर अगर आईएसओ की मैं बात करूं, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, होसे और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। इसको इस्टेब्लिश 1937 में किया गया, हेडक्वार्टर लंदन यूके, एंड 88 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री बॉडी आईएसओ, जो कि है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, किस साल के लिए, 2024
2024 के लिए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे एक दो चीज़ें और मैं पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा वीमेन लेड स्टार्टअप्स किस सिटी में हमें देखने को मिलते हैं? बेंगलोर में देखने को मिलते हैं, बेंगलुरु में, राइट। वीमेन लेड स्टार्टअप्स बेंगलुरु में हमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ रहेगा? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहाँ पे है? शिलोंग में, शिलोंग में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, आई रिपीट, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, राइट। ये एक आपका कैंपेन है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। सी बकथॉन, राइट, इसको भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, ठीक। फिर 2 डे लॉन्ग ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, 2 दिन लंबी कहाँ पर हुई? अहमदाबाद में हुई। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स। दूसरा, सूर्य किरण, ये कभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? और तीसरा, किस कंट्री ने डिक्लेयर किया चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? तो कौन सी कंट्री बनी है चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन? फिर चौथा क्वेश्चन लिखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है? और फिफ्थ क्वेश्चन, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे, सब कमेंट कीजिए, उससे आपकी भी बेनिफिशियल, आपकी को भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी लर्निंग होगी, चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा और रिसर्च करने का आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक रिसर्च करने का आपको आदत बन जाएगी और आप अपनी चीज़ों को फिर खुद भी ढूंढ सकेंगे, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, राइट। थोड़े दिन करके देखो, आपको खुद इसका इफेक्ट समझ आएगा, खुद आपको अपनी लर्निंग में डिफरेंस आएगा। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.